Salam to all students of BS English Literature first year. I hope you are doing fine. First of all, I am telling you this is last lecture of your class. Today I am going to define the treatment of nature in poetry. This book is very necessary for this topic, the treatment of nature in English poetry. So you should read it. Clearly the first test to be the applied this date of the poetic truth. Poetic truth means poet wants to write something reality. Poetic truth means poetry हकीकत, जो ट्रुथ है, जो सच है, वो राइटर लिखे उसको कहते हैं कि पोएटिक ट्रुथ. मिस्टर वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर. वर्ड्सवर्थ को कहते ही हैं नेचर, पोइट ऑफ नेचर इसको कहते हैं इंग्लिश में. एज अ पोइट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ स्टैंड्स सुप्रीम. ही इज अ वर्शिपर ऑफ द नेचर. ही इज अ वर्शिपर ऑफ नेचर मीन्स ये नेचर का पुजारी है. नेचर्स डिवोटी or highest poet Wordsworth had a full-fledged philosophy, a new and original view of the nature's devotee. Nature's devotee means इसमें worshipper means पुजारी था ये नेचर का, और nature's devotees means के वर्ड्सवर्थ जो है अकीदतमंद था नेचर का. इसको जो नेचर था बहुत पसंद आता था. सो ये जो हमारा टॉपिक है ऑन द ट्रीटमेंट एंड नेचर इन द पोइट्री, इसमें वर्ड्सवर्थ को ही हम पढ़ेंगे. देयर आर मेनी राइटर्स इन दिस टॉपिक बट आई वांट्स टू स्टडी अबाउट द वर्ड्सवर्थ एंड some works of the Wordsworth. He conceived of nature as a living personality. He believed that there is a divine spirit all the object of the nature. Wordsworth says as a true pantheist, he also says that all is God and God is all. Nature is the means through which a man can come into the contact with God. This perception is the particularly where he says with the great devotion. Wordsworth believed that the company of nature gives joy and to the human heart. वर्ड्सवर्थ जो है वो बिलीव करता है कंपनी, नेचर की कंपनी में. जैसे मैंने एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक कुछ फ्लावर्स हैं, नेचर्स हैं, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द नेचर, क्लाउड्स एंड फ्लावर्स एंड ग्रीन थिंग्स एंड नेचुरली थिंग्स. And Wordsworth always want to describe the some naturally thing. Wordsworth says, in his eyes nature is a teacher whose wisdom we can learn and without which any human life and when the incomplete. He says nature is a teacher. Wordsworth define it very well. And there are many some important lines I mentioned in your this lecture. I shortly define that. He says to include we thought or say that Wordsworth never looked at the nature like the way we do. And he says in other lines in the way of the doing so he forgot himself as the great poet of nature with a true mystical vision. एक ग्रेट पोइट का ये एक ह्यूमन लाइफ एक रोल है जो नेचुरली जो ब्यूटी चीज़ें हैं उनके बारे में लिखते हैं और उनको डिफाइन ऐसे करते हैं जैसे उसकी ट्रू मिस्टिकल विजन हो. Wordsworth's conception of the nature, he says there was a roaring in the one night. The rain come heavily and fall on the floors, but how the sun is rising claim the birds. The birds are singing in the dancing woods. ये he says कि जब बरसात
चलती है, द रेन कम्स हैवीली, तो जो बर्ड्स हैं वो सिंगिंग करते हैं एंड डांसिंग करते हैं वुड्स पे. एंड ही सेज he believed that the between man and nature there is a mutual, ये believe करता है man और nature के दरमियान. He takes as the reader into the secret of the soul's communication with the nature. He believed that the human beings to grow up the life of the nature every perfect things, ये जो नेचरी चीज़ें हैं इन पे ये बिलीव करता है और इसके ही बारे में इसने बहुत से लिखे हैं. जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो बुक्स दिया है उनका नाम शो किया है, उसको आप डाउनलोड कीजिए गूगल पे और उसको सेल्फ स्टडी के लिए भी पढ़ लेना. वर्ड्सवर्थ पोएटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर. He defined 4 periods. First period of the freedom, second period of the scene, and third period of the imagination, and fourth period of the soul. इसमें ये फ्रीडम के बारे में सोचता था और सीन से बारे में इमेजिनेशन, क्योंकि राइटर जो पोइट होता है वो इमेजिनेशन ही करता है. इमेजिनेशन. द पीरियड ऑफ द सोल. सोल मीन्स रूह. रूही ताज़न की तरह वो सोचता है और वो ही लिखता है. द पीरियड ऑफ द फ्रीडम इज लव ऑफ नेचर. इसने फ्रीडम के लिए ये लिखा है कि लव भी एक नेचर है, और वुडसन ने भी लिखा है कि हिज लव ऑफ द हेल्थी वॉइस लव. इसने भी वुडसन ने भी लिखा है एयर ऑफ द फ्रीडम, उसने भी ये भी मेंशन किया है. वो ये लाइन जो जी है इसने द मून डोथ विद द डिलाइट, इसने मून के बारे में भी लिखा है, इसको डिस्क्राइब किया है. ये जो द पीरियड ऑफ द सीन, सीन में इसने लव फॉर नेचर, इसमें बहुत सारे चीज़ें डिफाइन की हैं. इसने साउंडिंग, ये जो लिखा हुआ है साउंडिंग, कंट्रैक्ट, हंटिंग द लाइक, पासिंग ऑफ द माउंटेन, माउंटेन भी लिखे हैं, द ट्रेल ऑफ द टॉप भी लिखे हैं, माउंटेन ऑन द डीप वुड्स भी लिखे हैं, कलर्स भी लिखे हैं, और बहुत चीज़ों के बारे में इसने सीन में लिखी है. सीन नज़ारा. द पीरियड ऑफ इमेजिनेशन. ही अचीव्ड मोरलिटी फ्रॉम नेचर. नेचर अ परफेक्ट एजुकेटर फ्रॉम मैन. डेफोडिल्स and lucky poems are the best example. Here is the main moral of the personality. इसके जो दो डेफोडेल्स एंड लक्की पोएम जो लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल के लिए वर्ड्सवर्थ के तमाम मशहूर हैं. जो डेफोडेल्स हमने 9th में शायद पढ़ा था, तो वो भी मैंने क्लास में बोला था कि डेफोडेल्स को फिर से भी आप नेचर ऑफ द पोइट्री में पढ़ लीजिएगा. There are 2 important poem of the Wordsworth and the famous in the world, so we should read it. The period of soul. The period of soul में इसमें क्या बयान किए हैं? Nature an object of the soul and the living spirit. Nature a source of divine spirit. Nature is the thought of the personality and mythical apparitions. And इसने जो इसमें सोल में डिफाइन किए ये 3-4 चीज़ें, इसको भी आप सेल्फ स्टडी फर्दर डीपली कीजिएगा. द नेचर इन द पोइट्री मैंने 2 राइटर डिस्क्राइब किए हैं, एक तो वर्ड्सवर्थ है और दूसरा वुडसन की भी कुछ कोटेशन आए थे. अभी आया है स्विमिंग अप में एक और राइटर. ही वॉज अ ट्रू डिवोटेड ऑफ द नेचर ह्यूमैनिटी इन द वर्ड्स ऑफ मैथ्यू आर्लोन. मैथ्यू आर्लोन जो भी है ये भी एक एसआई पोइट है, राइटर है मैथ्यू आर्लोन. उसने भी नेचर के लिए लिखा है और क्रिटिसिज्म भी किया है. इसने कहा कि नेचर नॉट ओनली गिवन हिम द मैटर बट रोट इज द पोएम फॉर हिम. वर्ड्सवर्थ वाज इन द ट्रू सीन द मोस्ट रोमांटिक एंड द प्योर सोल ऑफ द नेचर. इसने मैथ्यू आर्लोन में भी नेचर के लिए जो वर्ड्सवर्थ को है उसको कहा कि he was a true scene of the nature and romantic writer. Dear students, nature and poetry, they given some definition. There are many writers.
Many poets include descriptions of the nature in their poems. They describe the worlds around them in the writing for a purpose. तो बहुत सारे राइटर हैं जिसने पोइट्स हैं उन लोगों ने नेचर को डिस्क्राइब किया है, पोएम बनाए हैं, लेकिन दे डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड द देम इन राइटिंग फॉर द पर्पस. इसने पर्पस के लिए डिफाइन किए हैं. But they not only try to show us what the scene, they try to make us the understanding how they feel. ये एक वेंडली बेरी provides a simple useful definition of the nature. वेंडली बेरी 4 राइटर है. मैंने फर्स्ट वर्ड्सवर्थ डिफाइन किया है, सेकंड हुडसन किया है, फिर मैंने एक और राइटर जो हमारा था इस स्लाइड में जो मैथ्यू आर्लोन मैंने डिफाइन किया है, 3 राइटर, और अभी ये चौथा राइटर है वेंडली बेरी प्रोवाइड्स सम यूजफुल डेफिनेशन ऑफ द नेचर. इसने भी एक नेचर की डेफिनेशन दी है. इसने क्या बोला, इसने कहा कि पोइट्री एज अ पोइट्री दैट द कंसिडर्ड नेचर एज द सब्जेक्ट मैटर एंड द इंस्पिरेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर इज द रिलेटिव हिस्टोरिकल डिटरमाइंड. द नेचर पोएम इज affected by the ideology and the literary conversation as well as social and the culture ideas. इसने भी अपने आइडियाज़ दी हैं. और डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था, शॉर्टली मैंने डिफ़ाइन किया है क्योंकि ये जो हमारे वीडियो हैं ये इसमें शॉर्टली डिफ़ाइन करेंगे और इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म जल्द होगा, तो अगर हमें टाइम मिला तो उसको क्लास में भी डिफ़ाइन करेंगे. रही बात तो ये जो लेक्चर आज मैंने रिकॉर्ड की है, मैंने तो कोशिश की है कि अच्छी तरीके से इसको मैंने रिकॉर्ड किया है कि आई होप आप ऑल स्टूडेंट्स जो भी हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ इसको लिसन करेंगे और इसको पूरी अच्छी तरीके से आप लिसन करना, वॉच करना. उनके बाद इसको अपने रफ बुक में लिखना. ये जो स्लाइड्स मैंने दी हैं उस स्लाइड्स को लिखकर अपने रफ बुक में न्यू वर्ड्स जो भी हैं उसको उसकी मीनिंग भी निकालना डिक्शनरी से और फिर इसको डिफ़ाइन करना. ये जो फर्स्ट में मैंने एक बुक दिया था, जो फर्स्ट स्लाइड्स में मैं फिर से उसको शो करता हूँ, उस बुक को आप कोशिश करें, इस बुक को आप नेट से डाउनलोड करें. इसमें भी अच्छी तरीके से जो डिफ़ाइन किया है डिफरेंट राइटरों ने, तो आप सेल्फ स्टडी भी करें और इसको अच्छी तरीके से पढ़ें. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर एक और टॉपिक है ऑन द पर्सनैलिटी इन लिटरेचर, वो हमारा समझा हुआ नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ सम पर्सनैलिटी ऑफ लिटरेचर उस पर भी रिकॉर्ड करके इसको इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगा. लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो आपके सिलेबस में दिए गए 5 टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट किए हैं. आई होप आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. जिस स्टूडेंट्स को ये स्लाइड्स मैंने शॉर्टली बनाई हैं आई थिंक समझ में नहीं आए तो ग्रुप में वो क्वेश्चन भी कर सकता है और पूछ भी सकता है, पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन फजूल नहीं, काम के क्वेश्चन. और मैंने कोशिश किया है कि हर स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल को रिप्लाई दिया है व्हाट्सएप पे, और जो क्वेश्चन के हिसाब हैं वो भी मैंने इनको रिप्लाई दिया. इस लेक्चर के अबाउट जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उनका जवाब दूंगा. और एक और भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ सम पर्सनैलिटी ऑफ द लिटरेरी पर्सन या ऑन पर्सनैलिटी ऑफ लिटरेचर, कोशिश करूंगा वो भी जल्द रिकॉर्ड करूंगा. लेकिन आपके मिड टर्म असाइनमेंट्स ये कंप्लीट हो गए, 40 मार्क हो गए, ठीक है. जब हम न्यू सेशन स्टार्ट होगा अभी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, देखें आगे क्या होता है, लॉकडाउन किस हद तक चलता है, तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आउटलाइन दूंगा, वो टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो मैं वो टॉपिक सिर्फ आपके एग्ज़ाम में दूंगा. उन टॉपिकों से आपके सिर्फ पेपर्स निकालूंगा. कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो, जिसको समझ में ना आए वो मुझसे फिर रब्ता करें. होप टू सी अगेन. अल्लाह हाफिज़.